السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی عورت کا واقعہ لے کر آئے ہیں جو ہر جمعرات مزار پر جاتی، پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا، سب کے سامنے جانور جیسی شکل میں کیوں بدل گئی؟ ایسا اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دردناک سزا دی؟ جو کوئی بھی دیکھ رہا تھا دہشت میں ڈوب گیا اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں بہت بڑا سبق اور نصیحت چھپی ہے۔ اس لڑکی کا نام نور تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت، چنچل اور آنکھیں تو اس کی ایسی تھیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی کیونکہ وہ کئی منتوں اور کئی دعاؤں کے بعد ہوئی تھی۔ نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام حسن تھا، پر نور ہی اپنے ماں باپ کی دھڑکن میں بستی تھی کیونکہ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، اس لیے وہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی امی کا نام رانی اور اس کے ابو کا نام انس تھا۔ اس کے امی ابو اسے اتنا پیار کرتے کہ اس کی ہر خواہش سر آنکھوں پر رہتی۔ نئی چوڑیاں، نئے کپڑے، جو بھی بازار کے شوق ہوتے اس کے پورے کراتے کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے۔ کبھی کبھی اس کی امی اسے ڈانٹتی بھی کہ نور بیٹی، کبھی کبھی گھر میں بھی دھیان دے لیا کرو، گھر کے کام سیکھو، اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ تبھی انس، اس کے ابو، بیچ میں آ جاتے اور کہتے، خبردار، میری بیٹی کو کبھی مت ڈانٹنا، اسے اپنی زندگی جی لینے دو۔ لیکن اس اندھے پیار نے نور کو بگاڑ دیا۔ اس بات کا احساس انس کو تب ہوا جب اس نے ایک گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھا جو چپکے چپکے اس لڑکے سے ملتی تھی۔ اس لڑکے کا نام تھا طالب۔ نور کے امی ابو کو جب یہ معلوم ہوا تو انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ طالب پورے محلے میں مشہور تھا، جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لڑکیوں کو پھنساتا، ٹائم پاس کرتا پھر انہیں چھوڑ دیتا۔ انس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ یہ بات زیادہ آگے بڑھے یا ہماری عزت اچھلے، اس سے پہلے ہم اپنی بیٹی نور کی شادی کر دیتے ہیں۔ نور کے ابو انس اس لڑکے طالب کے پاس گئے اور اس سے شادی کی بات کی۔ تبھی وہ ایک دم بھڑکتا ہے اور کہتا ہے، انکل، میں تو صرف ٹائم پاس کرتا ہوں، آپ اپنی لڑکی کو میرے گلے نہ باندھیں۔ اب انس بیچارہ کیا کرتا، ٹوٹ گیا اور گھر پر واپس آ گیا۔ تبھی اس نے اپنے ایک پرانے شاگرد سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ ابھی نور کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جب نور کو اپنی شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا، امی ابو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم میری زندگی کا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تبھی نور کے ابو بولتے ہیں، بیٹی، تم نے اپنا فیصلہ لینے کا حق کھو دیا ہے، تم نے ہمارے لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا ہے۔ نور کی شادی جس لڑکے سے طے کی تھی اس کا نام صابر تھا اور وہ بہت ہی نیک لڑکا تھا۔ اب نور صابر کے گھر پر دلہن بن کر آ گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد نور کے ابو انس بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب ان ماں بیٹے کا کوئی بھی سہارا نہ رہا۔ نور کی امی دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، اس سے اپنے بیٹے حسن کو پڑھاتی۔ صابر ایک نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے صبح جلدی اٹھتا اور کھیتوں میں کام کرتا، شام کو لیٹ سے گھر پر آتا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی جو میرے گھر کو بھی سنبھالے گی۔ نور کے ساس سسر بھی بہت ہی نیک دل تھے۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ صابر کو پتہ لگتا ہے کہ نور نہ ہی گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی اسے گھر کے کام کرنے کا شوق ہے۔ اسے صرف اور صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ وہ پورا دن آلس میں گزار دیتی اور اس کی ساس بیچاری پورے گھر کا کام سنبھالتی۔ تبھی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد نور نے اپنے شوہر سے فون کی ضد کی۔ تبھی اس کا شوہر صابر کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، جب پیسے ہوں گے میں تمہیں فون دلا دوں گا۔ پر نور کی ضد تو بڑھتی گئی اور اس نے کہا، نہیں، مجھے فون چاہیے، چاہے کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو۔ صابر اپنی بیوی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لیے اور اپنی بیوی کے لیے فون لے آیا۔ نور اپنا فون دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی کیونکہ اسے اپنے پرانے عاشقوں سے بات کرنی تھی، وہ انہیں ابھی تک نہیں بھلا پائی تھی
और बेचारा साबिर इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगर उसे खबर होती तो शायद वो शादी भी ना करता। नूर की माँ हमेशा नूर से नाराज रहती, क्योंकि वो अनस यानी नूर के बाप की मौत का जिम्मेदार भी नूर को ही ठहराती थी। तभी एक दिन नूर अपनी अम्मी के पास बहुत सारे जेवर, बहुत सारे पैसे और एक बहुत ही कीमती जोड़ा लेकर जाती है और कहती है, माँ ये सब तुम्हारे लिए। तभी नूर की अम्मी कहती हैं, बेटा ये सब तुम कहाँ से लाई हो और क्यों लाई हो? तभी नूर कहती है, अम्मी ये आपके लिए है, पर मेरी एक बात माननी होगी। जब भी मेरा शौहर साबिर पूछे कि मैं घर पर आई थी तो आप कह देना हाँ, वो दरगाह पर सलाम करने जाती है और फिर पूरे दिन मेरे घर पर ही ठहर जाती है। पहले तो उसकी अम्मी को ये सब अजीब लगा, पर उसने ना ही जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे थे, ना ही इतने जेवर। क्योंकि अनस की कमाई भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजारी थी। वो इतने सारे पैसे देखकर लालच में आ गई और नूर का साथ देने के लिए राजी हो गई। साबिर का रिवाज था कि वो हर जुमरात को पास की दरगाह में जाता और सलाम करके दुआ करके वापस आ जाता। एक दिन उसने अपनी बीबी नूर से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी जिद करने पर नूर भी उसके साथ चली जाती है और जैसे ही बाबा नूर को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और साबिर से कहते हैं, बेटा मेरे लिए पानी तो लेकर आओ। साबिर पानी लेने के लिए चला जाता है। तभी बाबा कहते हैं, बेटी संभल जाओ, तुम्हारा शौहर बहुत नेक है और बहुत मोहब्बत करता है तुमसे और कभी भी कोई चोरी छुपी नहीं रहती। आज ना तो कल ये सामने आ ही जाएगी। नूर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सहम सी जाती है और बोलती है, बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? तभी बाबा आखिरी जुमला बोलते हैं और कहते हैं, बेटी वक्त है, संभल जाओ। दुनिया की चमक धमक में तुम अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। तब तक साबिर आ जाता है और बाबा चुप हो जाते हैं और दोनों घर पर आ जाते हैं। अगली जुमरात इस बार साबिर अकेले गया। तभी बाबा ने कहा, तुम्हारी बीबी नहीं आई? तभी साबिर कहता है, नहीं बाबा, वो अपनी माँ के घर पर है। बाबा कहते हैं, बेटा अगर तुम किसी की जिम्मेदारी लो तो उसके सही से जिम्मेदार बनो और उसकी हर बात पर ध्यान रखो। साबिर सिर को हिला देता है, पर उसके कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब तो ये सब नूर का रूटीन बन चुका था। वो आए दिन पूरी पूरी रात गायब रहती, ना कि लड़की बल्कि वो लड़कों के साथ रहती। पूरे पूरे दिन उनके साथ घूमती, मस्ती करती और अपनी अम्मी का सहारा लेती। वो साबिर से कहती, साबिर मेरी अम्मी बीमार हैं, क्या मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? एक दिन साबिर ने कहा कि मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और अम्मी घर पर अकेली रहती हैं और मुझे भी खाने पीने की दिक्कत होती है। तुम रोजाना मायके ना जाया करो। तभी नूर रोती है और अपने आंसुओं से साबिर को पिघला देती है। साबिर उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता, क्योंकि वो नूर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने नूर को मायके जाने की इजाजत दे दी। नूर 2 दिन के लिए बोल के गई थी और पूरा हफ्ता अपने मायके में ही रुकी। इससे उसकी सास भी बेचारी बहुत उदास रहती और पूरे पूरे दिन अपने घर का काम संभालती। एक दिन उसकी सास छत पर कपड़े सुखाने गई कि सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया। तभी साबिर ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, क्योंकि पैर में काफी चोट आ गई थी। और वो अपनी बीबी को लेने घर पर पहुंचा और अपनी सास से कहता है, अम्मी नूर को बुलाओ। नूर कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी उसकी अम्मी घबरा जाती हैं और कहती हैं, बेटा अभी नूर थोड़ी देर में आ ही जाएगी, वो पास की दरगाह में सलाम करने के लिए गई है। साबिर काफी देर तक इंतजार करता, पर नूर नहीं आती। नूर की अम्मी उसे फोन करती और सारा मामला बताती। उस समय पर नूर अपने किसी नए आशिक के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी, जिसने उसे बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे जेवर दिलाए थे। जब शाम को वो घर पर आई तो साबिर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुम तो दरगाह पर गई थी, इतनी देर कैसे? और ये सब क्या है? ये कहाँ से लाई हो? तभी नूर वही अपनी पुरानी एक्टिंग का इस्तेमाल करती है और उसके सामने 2 आंसू गिराती
और कहती, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए मैं दरगाह पर कुछ देर के लिए रुक गई थी। साबिर उसके आंसुओं पर पिघल जाता और बात को भूल जाता। तभी नूर अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बताती और कहती, अम्मी मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं लड़कों से मिलती हूँ और उनसे पैसा लेती हूँ, कपड़े जेवर लेती हूँ और जो वो कहते हैं उनकी बात को मानती हूँ। उसकी अम्मी ने समझाया और कहा, बेटा ये तो गुनाह है, पर वो अपनी अम्मी पे भड़क गई और कहने लगी, तो क्या मैं अपनी सारी जिंदगी इसी गरीबी में गुजार दूं? जब नूर अपनी ससुराल में आई तो उसकी सास ने इतने कीमती जेवर कपड़े देखकर उस पर शक किया और उससे कहा, बेटा ये इतनी कीमती जेवर तुम कहाँ से लाई हो? तुम्हारे शौहर की तो इतनी कमाई नहीं है। तभी वो साबिर के सामने जाकर रोती है और कहती है, तुम्हारी माँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। साबिर उससे इतनी मोहब्बत करता था कि वो उसकी बातों में आ जाता है और अपनी अम्मी से कहता, तुम नूर पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाती हो? उसकी अम्मी कहती हैं, बेटा तुम बीबी की मोहब्बत में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। तुम अपनी आंखें खोलो और एक बार खुद ही सोचो, तुम्हारी कमाई तो इतनी नहीं है, तो इसके पास ये इतनी कीमती चीजें कहाँ से आती हैं? वो अपनी अम्मी की बात को इग्नोर करता क्योंकि वो अपनी बीबी नूर पर बहुत ही भरोसा करता था। एक दिन रात में नूर के फोन की रिंग बजती है और नूर फोन उठाकर चुपके से बाहर बालकनी में निकल जाती है। तभी साबिर उसके पीछे से चुपके चुपके उसकी बात सुनने लगा। जब वो सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि नूर अपने किसी आशिक से मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। ये सब सुनकर साबिर अंदर से बिल्कुल टूट गया और उसने दिल ही दिल में कहा, अम्मी सही कहा करती थी, पर मैं अम्मी पर ही भड़क जाता था। अगले दिन नूर साबिर से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। साबिर उदास चेहरे से कहता, ये बच्चा मेरा है या किसी और का? नूर रोती है और कहती है, तुम मुझ पर शक कर रही हो। तभी साबिर कहता, मैंने तुम्हारी कुछ कुछ बातें सुनी थी, तो मुझे लगा शायद तुम किसी और के रिलेशन में हो। तभी नूर कहती, मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, आज तक तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने छुआ भी नहीं। साबिर यकीन कर जाता क्योंकि उसने कुरान की झूठी कसम खा ली थी। फिर जुमेरात के दिन साबिर दरगाह पर सलाम करने के लिए गया। तभी उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें आराम होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। और नूर को भी कुछ बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो साबिर के साथ चली गई। और जैसे ही मजार के साईं बाबा ने नूर को देखा तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतो। और अचानक से नूर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गई और उसके हाथ पैर जानवर के जैसे होने लगे, लंबे लंबे नाखून, हाथ और पैरों पर लंबे लंबे बाल, और वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। लोग उसे देखकर घबरा गए और कहा, ये कोई जिन या भूत है। तभी बाबा कहते हैं, नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, इसने अपने शौहर को धोखा दिया, इसने औलिया के नाम पर झूठ बोला और गुनाह और झूठ की इसने हद पार कर दी है। साबिर ये सब देखकर बहुत सहम गया और वो घर पर चला गया और सदमे में डूब गया। सब लोगों ने ये नजारा देखा और सब ने इस्तग़फ़ार पढ़ा। हमें इस वाक़ये से सीख मिलती है कि गुनाह की सजा जरूर मिलती है, देर से ही सही। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।